ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਚ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਮਨ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਰਿਸ਼ੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ? हाँ जी जी बहुत बढ़िया ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MBBS ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ MBBS ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਰਸਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਿਰ MBBS ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਓ। ਮੈਡਮ, ਨਰਸਿੰਗ ਔਰ MBBS ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ लेके चल रहे हैं, किना मुल्क के चर्चा करेंगे? जरूर जी, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो हम कंप्लीटली यूरोप को कवर करने वाले हैं। अगर मैं BSc नर्सिंग की बात करूँ तो उसमें यूरोप, यूक्रेन से हम शुरू करेंगे एंड उसके बाद यूक्रेन की कोलैबोरेशन के साथ में जर्मनी जाएंगे। एंड अगर MBBS की बात करें तो ऑफ कोर्स यूक्रेन से शुरू करेंगे दोबारा से, एंड बेलारूस, फिलीपींस, चाइना, कजाकिस्तान, रशिया एंड बांग्लादेश इवन दो जी। सो ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਮੈਡਮ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ BSc ਔਰ MBBS, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਾਸ ਕਚਾ ਕੇ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਮੈਡਮ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੁੱਕਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ MBBS ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ? ਕਿਉਂਕਿ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? मैं स्टार्ट BSc नर्सिंग से ही करूंगी मैम। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इंडिया में BSc नर्सिंग करते हैं तो करने के बाद आप जब जॉब स्टार्ट करते हैं तो आपकी सैलरी किन बेसिस पे रहती है, कितनी रहती है अप्रोक्सीमेटली? मोस्टली अभी मुझे लगता है आज नर्सिस ही हमारा शो देख रहे होंगे, तो उस टाइम में उनकी बेसिक सैलरी 8,000 से शुरू होकर 10,000, 12,000, 15 या 20,000 होती है। सच गल है जी, बिल्कुल। तो अगर मैं आपको ये BSc नर्सिंग करने का मौका दे रही हूँ, इसके साथ आपको जर्मनी में जाके इंटर्नशिप भी मिलनी है और सैलरी भी वहां पे सेटल होके आप अपनी सैलरी अर्न कर सकते हैं, करीबन 2.5 लाख और 3 लाख के साथ। मतलब जे ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਵੀ। ऑफ कोर्स मैम, अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहते हैं, देखिए जो इंडिया में आप BSc नर्सिंग कर रहे हैं और या फिर यूक्रेन में जाके आप BSc नर्सिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, जो आपका अप्रोक्सीमेटली खर्चा आने वाला है वो सिमिलर ही है अकोमोडेशन डाल के। तो आप वापस इंडिया की तरफ क्यों रुक करेंगे? आप आगे मूव होना ही चाहेंगे। इंटरनेशनल स्टडी करने का मौका मिल रहा है ना, किथे ਅਸੀਂ 70-80 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਉਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 10 लाख के आसपास अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि खर्चा आपका आएगा पर ईयर दा टोटल मैम, टोटल खर्चा। जी जी जी। ਸੋ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਸਿਕ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ +2 ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, मतलब कुछ बहुत सारे चीजें होती हैं। इसमें थोड़े तो डिटेल चीज को मैं स्पेशली दोबारा बोलना चाहूंगी। पिछली बार भी जब हमने बात किया था, साडे दर्शक नवे नाल जुड़े। हाँ जी, लास्ट टाइम भी हमारे पास बहुत कॉल्स आई थी BSc नर्सिंग को लेके, लेकिन हमारे को जो मेजर क्राइटेरिया इसमें चाहिए, 12th में आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट बेसिकली चाहिए। आप MBBS के लिए जा रहे हैं या फिर BSc नर्सिंग के लिए जा रहे हैं, दोनों में बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी बायोलॉजी सब्जेक्ट है। आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई लंबे चौड़े आपको डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, ना तो एक्सेस फंड की जरूरत रहती है जैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया या कहीं मूव होते हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट सिर्फ मैं यही बोलूंगी आपके पास बायोलॉजी 12th मेडिकल में होना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। सो दर्शक जुड़ने शुरू हो गए ने जी, कॉल कर ले लीजिए जी दर्शक जी, जरूर। ठीक है जी, सत श्री अकाल जी, स्वागत है। संपर्क टूट गया जी। अगले दर्शक जी, सत श्री अकाल, स्वागत जी। मेरी गुजारिश है जी, प्लीज टीवी ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੀ।
ਜੀ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ। ਅਗਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਮੈਮ ਨੀਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੀਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ? ऑफ कोर्स मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। एमबीबीएस के लिए अगर हम एडमिशन लेने जाते हैं फॉरेन में या फिर इंडिया में, तो बेसिक रिक्वायरमेंट वहां पे रहती है नीट एग्जाम क्लियर होना चाहिए बच्चे का, जिसमें उनकी जो कट ऑफ स्कोर, इंडिया का कट ऑफ स्कोर अलग होता है और अब्रॉड में आप अप्लाई करते हैं तो जनरल कैटेगरी में 138 और रिजर्व कैटेगरी में 108 108 स्कोर चाहिए होता है। मोस्टली मिथ ये बना दी गई है कि जिसके सबसे कम स्कोर आते हैं वो ही फॉरेन में पढ़ने जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपके 400 से कम स्कोर हैं, ऑफ कोर्स आप वहां पे 400 के साथ में भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इंडिया में गवर्नमेंट में आपको सीट मिल जाएगी। आप 400 के साथ या 400 से कम में भी नीट क्लियर होने के बाद एमबीबीएस बहुत अच्छे कॉलेजेस में अब्रॉड से एडमिशन कर सकते हैं। ठीक है। सो ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ। ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? मैम बीएससी नर्सिंग, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਲੀਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਾ। ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾਓ ਇੱਕ ਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਡਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੀਐਸਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहूंगी एमबीबीएस अलग कोर्स है एक तरह से और बीएससी नर्सिंग अलग है। बेसिक क्वालिफिकेशन 12th मेडिकल के बच्चे या तो एमबीबीएस करने जाते हैं या बीएससी नर्सिंग, मतलब आप बीएससी नर्सिंग के बाद में एमबीबीएस ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल अलग स्ट्रीम्स हैं दोनों। ऑफ कोर्स नर्सिंग एंड डॉक्टरेट जब आपने पढ़ना होता है अलग होता है। ठीक है। जो सबसे अच्छी, मैं अगर यूनिवर्सिटी की बात करूं जिसका एमसीआई रेशो भी डिपेंड करता है, आप पुलतावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को चुन सकते हैं। वहां पे मोस्टली बच्चे अपना एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं, जिसका एमसीआई रेशो, मतलब ज्यादातर बच्चे वहां से अपना एमबीबीएस कंप्लीट करके अपनी इंटर्नशिप कर रहे हैं, अपना डॉक्टरेट क्लियर कर चुके हैं। वो 66.7% है। मैम व्हाई दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी? मतलब और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैगे ने। दैट्स व्हाट, यही चीज मैं बोल रही थी कि एमसीआई रेशो, पहली चीज एमसीआई रेशो उसका 66.7% है। और दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका कैंपस। आपको हर एक बेसिक चीज जो जहाँ पे जो एक कैंपस में आपको चाहिए उसी रेडियस में मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल आपका हॉस्टल भी कैंपस के अंदर है, आपका हॉस्पिटल कैंपस के अंदर है, कैफेटेरिया, लाइब्रेरी, सिर्फ 2 पर्टिकुलर जो जैसे रिसर्च सेंटर जैसे हो गया वो आपको बाहर मिलेंगे। बाकी एवरीथिंग इज यू आर गेटिंग इन द कैंपस एरिया जी। ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਟ ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਜੀ। 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ?
मैं जी बाहर जाके की करांगे ये दसगा ਮੈਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੈਸੇ ਮੈਡਮ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੋਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ऑफ कोर्स पहले अपनी स्ट्रीम चूज करें, 10th कर रहे हैं आप, इसके बाद आप 11th में कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल की स्ट्रीम में आपका ज्यादा फोकस है, क्या ध्यान है, आप उसको चूज करें और आगे अपना करियर। ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਚਾ ਕੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ? फायदे ऑफ कोर्स मैम, पहली चीज बताऊंगी कि दोनों यूनिवर्सिटी जो कोलैबोरेशन है, जर्मन यूनिवर्सिटी और यूक्रेन यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं। ओके, आप वहां से बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपको सेकेंड एंड थर्ड ईयर में जर्मनी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा अपनी इंटर्नशिप करने के लिए। ओके, देन वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में आप जब आपकी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होती है तो वही यूनिवर्सिटी आपको अपने पास जॉब पर्पस के लिए भी बुला रही है। और बेसिक सैलरी मैंने बताया जैसे 2.5 लाख और ये 3 लाख तक आपको मंथली मिलेगी। कंपेयर टू इंडिया ये बहुत ज्यादा है और कम खर्चे में आप 10 करके वहां गुने जा तो रहे ही हैं। ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ। बट मैम एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी कि टाइम बहुत लिमिट रह गया है। अभी आपको एक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे पास 14 to 15 डेज ही बाकी हैं अगर हम एमबीबीएस की भी मैम एडमिशंस कर रहे हैं या फिर बीएससी नर्सिंग की, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन को भी टाइम लगता है। डेडलाइन हो चुकी है। अपकमिंग इनटेक्स केड़े ने जिन्हां ने जाना है यूक्रेन या फिर जिदा होर अभी फिलहाल मैम नीट के स्कोर एज जैसे लेट आया है तो सितंबर उसको समर इनटेक भी बोला जाता है, उसकी एडमिशंस अभी चल रही हैं। लेकिन डेडलाइन जैसे मैंने बताया वो आ चुकी है। वीकेंड को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, करीबन 10 से 14 दिन, 10 से 12, 13, 14 दिन ही हमारे पास बाकी है। बिल्कुल। तो अगर एक हफ्ता ही मान के चलो तो बाकी अगले हफ्ते में वीकेंड को हम काउंट नहीं करेंगे मैम, क्योंकि यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंटेशन करना है, भेजना है, फिर वीजा प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है। सो ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਪੀਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆਇਲਸ ਪੀਟੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੀਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰਾਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ? ਐਂਡ ਏਜ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਏਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ क्राइटेरिया रहने वाला है। मैं बीएससी नर्सिंग पे ही मेंशन करूंगी कि अगर आप बीएससी नर्सिंग वहां से करने जा रहे हैं तो आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जर्मन यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है आंद्रे क्रेपेविंस्की लवी मेडिकल एकेडमी, ये यूक्रेन की है। जर्मनी की क्लिनिक बवारिया करके है, वहां पे अगर आप करते हैं तो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको जर्मन लैंग्वेज आए। तो जर्मन लैंग्वेज की उनकी रिक्वायरमेंट है, आइल्स से रेलिवेंट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल्दो आपका सारा कोर्स, आपका लेक्चर, आपकी टेक्स्ट बुक्स, आपका टीचर्स का जो इंटरेक्शन रहेगा वो इंग्लिश में ही होगा, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट रहे इसके लिए, और ना ही एमबीबीएस के लिए। एमबीबीएस की बेसिक रिक्वायरमेंट नीट है, उसका स्कोर मैंने आपको कट ऑफ बता दिया, तो उसके साथ एडमिशंस आप करवा सकते हैं। एज मैम की रहेगी बच्चे? एज ऑफ कोर्स बीएससी नर्सिंग के साथ में एज गैप कर सकते हैं आप करीबन 3 से 4 साल का। ठीक है। और एमबीबीएस के लिए सारी चीजें नीट पे डिपेंड करती हैं मैम। अगर आपने पिछले साल नीट प्रिपेयर किया, आपका एग्जाम हुआ है, तो पिछले साल का स्कोर पिछले साल के अकॉर्डिंगली उठाया जाएगा, वो 3 साल तक वैलिड रहता है। ठीक है, ठीक है। इस तरह से एमबीबीएस का उस पर डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स दे कैन गो। एमबीबीएस और बीएससी नर्सिंग का कंप्लीटली क्राइटेरिया अलग होता है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जिस तरह से यहाँ पे रहते हैं बाकी होर कंट्रीज है। बिल्कुल। अगले दर्शक नाल फिर तो ने जी, सत श्री अकाल जी, स्वागत है जी। सत श्री अकाल, स्वागत। की नाम है जी? हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन है जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नाम की है, की सवाल है, दसो। हाँ जी मैम, मेरा नाम कविता है। मेरा क्वेश्चन है कि मेरी सिस्टर ने बीएससी नर्सिंग करनी है, बीएससी नर्सिंग, मैंने लोन फैसिलिटी, क्या लोन फैसिलिटी है? लोन फैसिलिटी, ओके, ठीक है जी। मैडम दसो जी। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू जी क्वेश्चन पूछने के लिए। एंड ऑफ कोर्स आपको मैम लोन फैसिलिटी मिल सकता है। उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट आपका, हमें पासपोर्ट का एक कॉपी चाहिए होगा, 10th 12th और बर्थ सर्टिफिकेट।
आप वो हम यूनिवर्सिटी भेजते हैं, यूनिवर्सिटी से हमें लोन लेटर रेडी होकर आता है। तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको हेल्प होती है कि आप ये लोन लेटर बैंक में लेकर जाएं, वहां से आप लोन फैसिलिटीज। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ एजुकेशन लोन कोई नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं पहुंचा? नेवर 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 एवर मैम, आप वहां पे पढ़ने जा रहे हैं एक तरह से, राइट। लॉन्ग टर्म आपकी प्लानिंग हो रही है। बीएससी नर्सिंग 4 साल की होती है एंड एमबीबीएस आपकी 5 साल 6 महीने 8 महीने अलग अलग है। जैसे बांग्लादेश में सिर्फ 5 साल की एमबीबीएस होती है, यूक्रेन में 5 साल 8 महीने की होती है। सो इतना लॉन्ग टर्म में हाँ जी करना है तो ऑफ कोर्स बैंकिंग की तरफ से ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਲੋਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਕੋਰ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ मैम? 10th 12th अगर एमबीबीएस के लिए जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स नीट स्कोर आपका हमें चाहिए एंड बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स चाहिए होगा एंड द पासपोर्ट। अभी लास्ट जब हमने शो किया था हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी बीएससी नर्सिंग के लिए भी, बट एक ही मेजर प्रॉब्लम हो गई कि उनका पासपोर्ट अभी रेडी नहीं था। तो जो भी बच्चे अपनी एमबीबीएस या फिर बीएससी नर्सिंग करने जाना चाहते हैं, सबसे पहले अपना एटलीस्ट पासपोर्ट अप्लाई करें जिनके पास नहीं है। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਨਾ, ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੈਗੇ ਔਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? मैम मोस्ट प्रोबेबली इसको करीबन से करीबन आप 20 डेज से लेके 30 डेज काउंट करके चलिए, क्योंकि इनविटेशन लेटर बनता है, फिर उसके बाद में वीजा प्रोसेसिंग जब स्टार्ट होता है तो वो टोटल काउंट अगर हम लेके चले 20 से 25 डेज तो डेफिनेटली इसमें जाता ही है। एमबीबीएस के लिए ऑफ कोर्स हमें वही नीट की वेट करनी होती है, अदरवाइज वो ਹੋ ਜਾਂਦਾ देर में रेडी हो जाता जी। ठीक है। अच्छा मैम, बहुत सारे ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। Of course, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ जी ਸਾਂਝਾ जी ਕਰੋ। जी। एंड एमबीबीएस पे आऊंगी मैं दोबारा से। जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ, पुलतावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये एमसीआई अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, WHO लिस्टेड है एंड आप इसको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशन के तौर पे भी जान सकते हैं। यहाँ से बहुत से बच्चे USMLI एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं फर्स्ट ईयर से। मैम मैं इन बिटवीन ही बोलना चाहूंगी कि वाई यू चूज दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। एक तो पहले साल से ही बाकी की जगह पे अगर आपने अपनी MD कंटिन्यू करनी है तो पहले साल से ही USMLI का USA के लिए, प्लैप UK के लिए ये एग्जाम्स की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि ये तीसरे साल में इन्होंने अपना एग्जाम देना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज पेरेंट्स के लिए मैं बताऊंगी कि आपको इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से एक पोर्टल मिलता है जहां पे अपने बच्चे की डेली एक्टिविटीज आप चेक कर सकते हैं, कितना लेक्चर उसने अटेंड किया है, क्या लेक्चर था, क्या अपकमिंग सिनेरियो है। सो इट काइंड ऑफ अ लाइव अपडेट इस यूनिवर्सिटी से, और हर क्लास में 10 मिनट एंडिंग में टेस्ट होता है। सो ऑफ कोर्स डॉक्टर पढ़ने जा रहे हैं आप, डॉक्टरेट करना है, तो ये सब चीजों के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। सो इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी जी। ठीक है। दर्शक नाल है जी अगले। सत श्री अकाल जी, स्वागत है। सत श्री अकाल मैम। हाँ जी, की नाम है जी, की सवाल है? मैं रेखा बोल रही हूँ जलंधर तो। ठीक है जी, की सवाल है रेखा जी? मैम मैं अपनी बेटी बारे पूछना ਸੀਗਾ। ओके जी, पूछो जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ +2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ। ਮੈਡੀਕਲ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ? 2020 ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ 75%। ਓਕੇ, ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਰੇਖਾ ਜੀ? ਮੈਮ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ IELTS ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ? ਪਾਸਪੋर्ट ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ? नहीं मैम। नहीं बने। ओके, सेम क्वेश्चन मैम। दोबारा से मैं बताना चाहूंगी मैम, अगर आपने BSc नर्सिंग के लिए बच्चे के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले हमें पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। आप बेशक कल ही अप्लाई कर दें उसे, डेट उठा लें, आपको पासपोर्ट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट, हमें IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं है BSc नर्सिंग के लिए, क्योंकि
B2 जर्मन लैंग्वेज डेफिनेटली आपको वहां पे रिक्वायर रहेगा। और ऑल्दो B2 की रिक्वायरमेंट है जर्मन लैंग्वेज की, आपको पैरेलली जो आपका करिकुलम चलेगा, आपका कोर्स चलेगा 4 सालों का, उसी में ही सिखाई जाएगी। कोई आपको एडिशनल कहीं अलग से जाके ट्यूशन नहीं करना है। ये है तो लैंग्वेज में सिर्फ जर्मन चाहिए, ठीक है। सब तो पहले नहीं चाहिए। ਪਾਸਪੋਰਟ बनवा लो, ਆਇਲਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? मैम जैसे मैंने अभी BSc नर्सिंग के लिए बताया, वहां पे आपको सारा करिकुलम जो भी आपके टोटल सब्जेक्ट्स रहेंगे, फॉर एग्जांपल आपके 7 to 8 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश में होंगे। आपके लेक्चर इंग्लिश में, आपका जो बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, सब कुछ इंग्लिश में। इवन दो लेक्चर्स जो टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन है वो सब इंग्लिश में रहेगा। क्लिनिकल रोटेशंस के टाइम पे जब आप पेशेंट से बात करेंगे, ऑफ कोर्स वहां पे थोड़ा सा आपको रहेगा, क्योंकि जर्मन में जाके आपने इंटर्नशिप करनी है, वहां पे आपका तब तक जर्मन A2 लेवल आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है जी। एंड MBBS में ऑफ कोर्स आपको जो लोकल लैंग्वेज है वहां का यूक्रेनियन, वो पहले साल से सिखाया जाता है, क्योंकि आपको पेशेंट से इंटरेक्ट करना होता है। ठीक है, ताकि Right, ਤੁਹਾਨੂੰ तीसरे साल से ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ MBBS ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? Exactly, बात नहीं कर पाएंगे। ਅਗਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ। ਠੀਕ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਮੈਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਈਅਰ MBBS ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੀਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਮੈਮ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਇਨਟੇਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ MBBS ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਨੀਟ ਦਾ ਸਕੋਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਮ ਮੇਰਾ 215। 215 of course. ठीक है, थोड़ा हाँ जी। टीवी स्क्रीन पे मैडम उन्हें जवाब देंगे। हाँ जी, आपका स्कोर मैम ऑफ कोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं है। डेडलाइन मैंने पहले ही जैसे बताया कि हमारे पास हार्डली 10 to 14 डेज ही हैं जिसमें हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स आप क्राइटेरिया मैच कर चुके हैं, आपका स्कोर अच्छा है, आपका 12th बायो मेडिकल आपने कर रखा है, तो आप बेशक कल ही आके ऑफिस मिलिए। आप नहीं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ 'ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ऑफ कोर्स मैम, जब भी आप पर्टिकुलर कोई यूनिवर्सिटी का चूज करते हैं, स्पेशली फॉर MBBS, जब आपने डॉक्टरेट करना होता है, आपकी बैचलर्स डिग्री जो MBBS करनी है, सबसे पहले बेसिक चीजें जो आपको चेक करनी है वहां पे जाके, एक तो कॉलेज जो है, यूनिवर्सिटी, वो कितने टाइम पुरानी है। मिनिमम टू मिनिमम 70 to 100 ईयर्स तो बेसिक लीजिए ही, क्योंकि उनका पेशेंट्स के साथ में इंटरेक्शन होता है, एक नाम बिल्ट अप करने के लिए टाइम लग जाता है, राइट। सो जितना पुराना गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, MCI अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, उनका जो प्रोसेस रहता है और कैंपस कंप्लीटली सब कुछ आपको अंदर ही मिलता है। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ हाँ जी, जितना पुराना होगा उतना आपके लिए अच्छा ਉਨਾ ਹੀ होगा। ਖਰਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ठीक है जी। जी, ਸੋ ਵੇਲਾ exactly। ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ? यही कहना चाहूंगी मैम, लिमिटेड टाइम है। अगर आप BSc नर्सिंग एडमिशन लेना चाहते हैं, अच्छी जॉब आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं BSc नर्सिंग के साथ, तो हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। इवन फॉर MBBS डेडलाइन है हमारे पास, हार्डली 10 दिन में हमें प्रोसेस करना है। आप व्हाट्सएप के थ्रू भी हमें डॉक्यूमेंट भेज के प्रोसेस शुरू करवा सकते हैं, लेकिन आपको एक बार ऑफिस आके विजिट करके आपके डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ेंगे ताकि हम आगे कंटिन्यू करें। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਵੇਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਔਰ ਬਾਹਰ इंटरनेशनल दोनों पासे बेनिफिट्स रहेगा। ऑफ कोर्स मैम, ऑफ कोर्स आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन ही जब इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल एक्सप्लोजर के साथ में है, तो ऑफ कोर्स आपको बहुत अच्छा बेसिक सैलरी मिलेगी। जब आप इंटर्नशिप करेंगे MBBS के बाद में, वो भी अच्छा है। एंड उसके बाद MD करने के लिए किसी और कंट्री में मूव होते हैं, वो भी आपके लिए बहुत बेस्ट है। एंड BSc नर्सिंग में तो ऑफ कोर्स आपको जर्मन वेलकम कर रहा है हर तरीके से। ठीक है जी। सो ਤੁਹਾਡੇ 10 ਉਂਗਲਾਂ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। BSc ਨਰਸਿੰਗ ਔਰ MBBS ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੇਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਡਮ ਰੁਚੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਯੂਨਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।